Excuse me. Good morning, everyone. Today we will do lesson number 15, Great Indians. Okay. Open your book, beta, on the same lesson, lesson number 15. Yesterday, we have already read this part about the Dr. APJ Abdul Kalam. Already we have read. I have assigned the work to one of the students to tell to all of you number of president and number of prime minister. Yes, beta, unmute yourself and tell whom I have assigned the duty. Yes, beta. मैम जो रामनाथ कोविंद है मैम हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं. Yes. And मैम APJ अब्दुल कलाम की प्रेसिडेंट श्री प्रतिभा Mrs. Pratibha Patil. मैम yes. Okay, no issue, beta. You please tell me number of prime ministers also. मैम जो श्री प्रतिभा पाटिल थे वो हमारे 12th प्रेसिडेंट थे. Lady President, yes, beta. Very good. जब वो हमारे 13th प्रेसिडेंट थे और मैम जो भी हमारे हैं श्री Kovind, yes. मैम जो हमारे अभी वो प्रेसिडेंट 14th हैं है. वो हमारे Same beta, listen. जो हमारे number of president हैं वो 14 है और prime minister भी 14 है. Only जो मिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे वो कुछ दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक्सपायर हुए थे तो कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था. उसके बाद फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बने जब लाल बहादुर शास्त्री जी एक्सपायर हुए थे, वो भी कुछ दिन के लिए. आपकी आवाज नहीं. हाँ, नो बेटा, मैम इट्स ऑडिबल. it's audible. Beta, you मैम please इट्स ऑडिबल. you check मैम your इट्स network. ऑडिबल. It's good. Well, It's good if it is audible. It's good. audible, ma'am. Please listen me. Please listen. ऑडिबल मैम. Okay. So, beta, yesterday already I have sent you the full forms of APJ Abdul Kalam. Can you tell me? Anybody can tell me what is the full form of APJ? Yes. Can I? Yes, you sure, beta? Speak. मैम can I? मैम एपीजे अब्दुल कलाम जी की फुल फॉर्म थी अबुल पैकेर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम. Yes, Abul Pakir Jain Ulabuddin Abdul Kalam. Very good. So today we will start our chapter from Ravindranath Tagore. All of you, please. Japneet Kaur, today you will read with me, beta. Yes, Japneet. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Excuse me मैम. Yes, beta. Yes. मैम मेरी कभी भी किसी भी मैम मेरी रीडिंग की टर्न नहीं आई. Who is this? Name, please. मैम मेरी भी नहीं आई. मनराज. मैम मेरी भी नहीं आई. Okay. मेरी This way you will not get turn. This way you will not get turn, beta. Manraj, in the beginning, I remember, beta. Okay, Manraj, today you can. Ravindranath Tagore, start it. Rabindranath Tagore, a Nobel literature for Rabindranath Tagore was a Bengali poet, painter, and philosopher and the educationist. बेटा रविंद्रनाथ टैगोर एवरीबॉडी नोस, ये वेस्ट बंगाल में इनका बर्थ हुआ था. एक बंगाली पोइट भी है, नॉवलिस्ट क्या होते हैं, नोवेल लिखते हैं, पेंटर भी हैं, फिलोसफर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं. ओके, ऑल क्वालिटीज थी रविंद्रनाथ टैगोर में और वो ऐसा अपने स्टूडेंट्स में भी चाहते थे. एक स्टूडेंट जो है, क्या उसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी होनी चाहिए? कोई भी पर्सन है, चाहे स्टूडेंट है या नहीं है, आफ्टर स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो एक ही क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं. ओके, उसमें हर तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए. जो भी हॉबी है, जो भी उसका शौक है, उसको पैशनली उसको लेना चाहिए. ठीक है,
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट He was स्लाइड. the Wait. Yes, he was the first non-European to European. European to be awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book Gitanjali. वेट बेटा, नॉन यूरोपियन क्या होते हैं? मैम जो आपकी आवाज नहीं आ Ma'am, you are audible. बेटा प्लीज चेक योर नेट, अदरवाइज इट इज ऑडिबल. ओके Ma'am, बेटा, your voice is audible. प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन. बच्चा प्लीज लेसन की तरफ कंसंट्रेट करो. If you are facing problem now, I will share my Zoom recording. You can check from there. But in between, don't disturb others. Okay? Beta, he was the first non-European. Non-European mean वो यूरोप के नहीं थे, right? To be awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था. किस लिए मिला था? गीतांजलि. उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, एक बुक लिखी थी. उस गीतांजलि बुक जो थी उसके अंदर क्या थी बेटा? कलेक्शन ऑफ पोइट्री, पोएम्स लिखी थी उन्होंने. गीतांजलि के अंदर जो पोएम्स लिखी थी उसका थीम क्या था? डिवोशन टू गॉड, जो हम भगवान को मानते हैं उसके बारे में, राइट? उन्होंने लिखा था प्रेजेंस ऑफ गॉड इज एवरीवेयर. ये मत सोचो कि जो गॉड है वो सिर्फ हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन सब में मिलेगा, ऐसा नहीं है. He is everywhere. ओके बेटा. और ये जो गीतांजलि बुक थी पहले ये बंगाली में ही लिखी गई थी. इतनी अच्छी पोइट्री होने के लिए जो यूरोपियंस हैं उन्होंने उनको नोबेल प्राइज दिया था 1913 में. यस मनराज, स्टार्ट फ्रॉम हियर. रविंद्रनाथ टैगोर was Rabindranath Tagore was born on 19th May 1861 in Kolkata to an influential फैमिली. इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है बहुत प्रभावशाली फैमिली, रिनाउंड फैमिली, जो वहां पर प्रसिद्ध थी. बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे रविंद्रनाथ टैगोर. उनका बर्थ कब हुआ बेटा? 9 मई 1861 में. यस. He had no interest. He had no interest in going to school. आप सोच सकते हो, एक मिनट मनराज, आप सोच सकते हो कि देखो ये रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बने, है ना? गुरुदेव की इनको उपाधि मिली. बट जब वो आपके जैसे थे, आपसे छोटे थे, तो उनका स्कूल में जाने को इंटरेस्ट नहीं कर रहा था. क्यों नहीं करता था? बिकॉज जब वो बहुत छोटे थे वो कहते थे कि स्कूल, आपके रूम्स भी हैं, उसके चारों तरफ क्या है? वॉल्स हैं. वो कहते थे वॉल्स और अंडर रूफ के अंदर मैं स्टडी नहीं कर सकता, मुझे एक ओपन एनवायरनमेंट चाहिए. बट उस टाइम स्कूल्स में क्या था बेटा? जो टीचर ने कहा वैसा ही होता था. आपको रूम के अंदर बैठना है तो वो रूम के अंदर थे. गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बच्चों को जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर बिठाकर, नेचुरल सराउंडिंग्स के बीच में, ओपन एरिया में, ठीक है, वहां पर उनको बिठाकर स्टडी करवानी चाहिए. इसलिए उनको बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं था. जपनीत, बेटर टू टेक योर ब्रेकफास्ट बेटा. आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, पढ़ तो हम बाद भी लेंगे. 11 o'clock तक आपका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ. It's very bad. You are moving. Kanika, you also, you are moving here and there. What is too fun to attend my class? What is this? I can see you all. Yes, Manraj. He had no interest. Traditional system of education did not interest him. Yes. ट्रेडिशनल सिस्टम, वही मैं बोल रही हूँ ना कि रोट लर्निंग थी. जो टीचर ने उनको बोला कि आज आपको जैसा ऐसे मैंने लिखवाया है ना, तो ऐसा ही लर्न करना है. जबकि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है ना. हम आपको क्या देते हैं? सिचुएशन देते हैं कि बेटा ये सिचुएशन है, इसके ऊपर आप अपने वर्ड्स में लिखो.
ठीक है। रोट लर्निंग क्या होती है? रट्टा मारना, एक ही चीज को बस वही का वही आपने पेपर में लिख दिया, बस उसके मार्क्स। अब ये सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। ओके, ये अब मॉडर्न टीचिंग आ चुकी है। अब आप घर पे बैठे हो, हाई टेक हो गए हो, आप इंटरनेट के थ्रू आप अपनी स्टडी कर रहे हो ना। इज दिस ट्रेडिशनल टीचिंग? नो, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल, दिस इज अ मॉडर्न टीचिंग। ठीक है। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को भी उस टाइम ये ट्रेडिशनल जो रोट लर्निंग होती थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यस बेटा। He was educated at home. यस, तो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई को छोड़ दिया और घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यस हरगुन, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम, जो उन्होंने गीतांजलि बुक लिखी थी मैम, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। बंगाली में मैंने सबसे पहले बोला बेटा, बंगाली। अभी वेट करो, अभी और आ रहा है, पहले सुनो सारा। यस बेटा मनराज, एट द एज ऑफ 7 At the age of 17, he was sent to England for formal schooling, but he did not finish his studies there and returned to India. यस बेटा, अब बाकी स्टडी तो उनके पेरेंट्स ने उनको घर पर करवा दी। ओके, बट जब वो 7, क्योंकि हायर स्टडी भी लेनी थी, फिर उनके पेरेंट्स ने उनको कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड में भेज दिया। ओके, बट वहां भी उनका मन नहीं लगा एंड ही रिटर्न टू इंडिया। वहां अपनी वो फिनिश करके, ही डिड नॉट फिनिश अपनी स्टडी को, उन्होंने फिनिश भी नहीं किया एंड ही रिटर्न टू इंडिया। यस, At the age of 22, he wrote a collection of poems. यस, 22 इयर्स की एज में ही रोट अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अभी मैंने ऊपर आपको बोला था गीतांजलि भी उन्होंने लिखी थी। उनकी जो मेन हॉबी थी वो क्या थी बेटा? पोइम लिखने की। वो एक अच्छे पोइट थे, राइट? यस, Rabindranath Tagore wrote lot of पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। पैट्रियोटिक क्या होते हैं? देशभक्ति के गाने। ठीक है, तो देशभक्ति के गाने उन्होंने सबसे पहले लिखने स्टार्ट किए। जनगण मन आर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय हिम। सबको पता है ना आपको, जो हमारा नेशनल ये है एंथम है जनगण मन, ही वाज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। यस, his collections of songs. Rabindra Sangeet is extremely popular even today. यस बेटा, रविंद्र संगीत पता क्या था? रविंद्र संगीत एक फ्यूजन संगीत था जिसमें क्लासिकल भी था, कर्नाटक भी था, वेस्टर्न थीम भी था। ओके, तीनों को मिलाकर एक फ्यूजन था, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रविंद्र संगीत। ठीक है। He wrote many stories, novels, plays, and dance dramas. Yes, he wrote many things. Yes, his paintings are exhibited in the exhibited क्या होती है बेटा? एग्जीबिशन में लगाना। ओके, इन द अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इन कोलकाता। कोलकाता की जो फाइन आर्ट्स अकेडमी है वहां पर उनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो एग्जीबिशन में रविंद्रनाथ जी उसमें पार्टिसिपेट करते थे और बहुत ही अप्रिशिएट करते थे लोग उनकी पेंटिंग्स को। Rabindranath Tagore had no interest in formal education system. Yes, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो डेड रूटीन होता है, लाइफलेस रूटीन होता है, उससे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत जल्दी फेड अप हो जाते थे। वो कहते थे 4 दीवारी और एक रूफ के अंडर मुझे ये स्टडी नहीं करनी। रोट लर्निंग को वो पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ना कि रोट लर्निंग। ओके, तो उनको ये वाली एजुकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। He started, yes. He started Shanti Niketan. Shanti Niketan. A school with the difference where there are no classrooms. Yes. Classes are. अब उन्होंने एक शांति निकेतन, बेटा ये नियर बोलपुर सिटी है वेस्ट बंगाल में। ओके, नियर बोलपुर सिटी वेस्ट बंगाल के में
एक शांति निकेतन स्कूल ओपन उन्होंने किया विद द डिफरेंस, उसके अंदर क्या डिफरेंस था? Where there are no classrooms, कोई क्लासरूम नहीं थे उस स्कूल में. Okay, yes. Are held in the open under the trees. Yes. क्या थे वहां पर बेटा? ओपन अंडर ट्रीज बच्चे बैठकर वहां पर एजुकेशन लेते थे. Yes. Children are provided free education and free food. Yes. प्रोवाइडेड, कोई उसकी फीस नहीं थी शांति निकेतन स्कूल में. एनीबडी कैन गेट द एजुकेशन. और उन बच्चों को फूड भी मिलता था. ठीक है, जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है ना बच्चों को मिड डे मील, उस टाइम भी मिलता था फ्री फूड. यस. He founded the Visva Bharati University in Shanti Niketan, West Bengal in 1863. यस बेटा, पहले क्या था? ये एक स्कूल था. ठीक है, शांति निकेतन. स्लोली एंड स्टेडली उसी स्कूल के जब बच्चे आगे आगे ग्रो करते गए, फिर उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी ओपन की शांति निकेतन के ही अंदर. कब की? वेस्ट बंगाल में 1863 में. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव. बेटा ध्यान से मेरी बात, इस चीज को ध्यान रखना है. रविंद्रनाथ टैगोर जी का नेम पहले सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर था, फिर उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला. क्लियर? और फिर 1930 के बाद 1915 में महात्मा गांधी जी, सबको पता है ना गांधी जी के बारे में, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के आगे गुरुदेव की उनको उपाधि दी. उसके बाद एवरीबडी नोज विद ओनली दिस नेम, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. क्लियर? Yes, Rabindranath Tagore. Do you know? Yes. Renounced knighthood from the British Empire in 1919 as a protest against the Jallianwala Bagh massacre in 1990. बेटा आप सबको पता है ये वाला एपिसोड तो जो जलियांवाले बाग में हुआ था. औरंगजेब ने जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर कर जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे मीटिंग के लिए, उन सब के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई और बहुत लोग तब शहीद हुए थे. कहा जाता है कि वहां पर एक वेल था, लोग जान बचाने के लिए उस वेल के अंदर भी गिर गए और कहते कई साल तक उस वेल का जो वाटर था वो रेड निकलता था. मीन इतने लोगों का ब्लड उस कुएं के अंदर चला गया. आज भी जब कभी आप अमृतसर जाते हो, प्लीज विजिट जलियांवाला बाग. वहां की जो दीवारें हैं वो उस टाइम की कहानी हमें सुनाती हैं. अभी भी वहां पर गोलियों के निशान बने हुए. इट मीन औरंगजेब ने अंधाधुंध वहां पर गोली चलाई. और ये जलियांवाला बाग का जो मैसेकर 1919 में हुआ, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़े दुखी मन से, क्योंकि उनको बहुत दुख लगा कि इतने निहत्थे लोगों को अननेसेसरी उन्होंने मार दिया, तो उन्होंने रिनाउंस्ड, क्या होता है बेटा, त्याग कर देना. ओके, जो उनको यूरोपियंस ने या उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको एक उपाधि दी हुई थी, उन्होंने उसको त्याग दिया. क्यों त्याग दिया? After Jallianwala Bagh massacre in 1919. I think so. Rabindranath Tagore is clear to all. So go with next student is Hargun. Yes, Hargun. मनराज आपका नहीं है बच्चा. Hargun will read now. Homi Jahangir Bhabha. Homi Jahangir Bhabha was an Indian nuclear physicist and was also called father of Indian न्यूक्लियर प्रोग्राम. बेटा इसको ध्यान से आपने सुनना है. होमी जहांगीर भाभा जो है न्यूक्लियर होता है परमाणु. फिजिस्ट होता है जो एक्सपर्ट होता है फिजिक्स सब्जेक्ट में. अभी आपके पास साइंस है ना, अभी आपको नहीं पता बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है ना,
जब आप 9th क्लास में हो जाओगे तब आपको साइंस जो है वो 3 पार्ट्स में हो जाएगी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब जो होमी जहांगीर भाभा थे उनको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी एंड ही वाज एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट। उन्होंने पीएचडी की थी। ओके अब वो जो न्यूक्लियर क्या होता है, परमाणु शक्तियां होती है ना, हर कंट्री अपने पास रखता है, तो उनका फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। yes Hargun, he was the brain behind. He was the brain behind the Indian Atomic Research Program. Yes, already explained. Yes, Baba was born in 1909 in a wealthy Paris family. पारसी फैमिली। वेल्दी क्या होती है, बहुत रिच सॉलिड फैमिली। पारसी फैमिली, जैसे हम हिंदू फैमिली है, सिख फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, ऐसे पारसी भी एक रिलीजन होता है, उस रिलीजन की फैमिली को वो बिलोंग करते थे। ठीक है। आफ्टर स्कूलिंग इन बॉम्बे, schooling in Bombay, now Mumbai, Baba went to UK for higher education. बेटा उनको यूके सबको पता है ना, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजा गया। ही डिड पीएचडी। पीएचडी क्या होती है बेटा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, सबसे बड़ी उपाधि होती है ये स्टडी में। आप किसी भी सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जब नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, डीप जाते हो उसकी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसको पीएचडी कहते हैं। इन फिजिक्स उन्होंने की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां पर है, लंदन में, 1935। यस, नेक्स्ट पेज। Baba was the founder of two well-known research namely Tata Institute of Fundamental Research and the Atomic Energy. यस बेटा, फाउंडर क्या होते हैं, जो स्थापित करते हैं सबसे पहले उसको। परनीत कौर, बेटा प्लीज डोंट अटेंड माय क्लास, नो नीड बच्चा, सिट प्रॉपरली। परनीत कौर, लिसन बेटे। भाभा वाज फाउंडर ऑफ टू वेल नोन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशंस को की स्थापना की। फर्स्ट क्या थी बेटा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एंड दूसरी थी ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। ओके, यस। आफ्टर भाभा's death, yes beta. After Baba's death in 1966, the center was renamed as the Baba Atomic Research Center. Yes, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उनकी डेथ के बाद उसका नेम चेंज किया गया और उसका नेम रखा गया बेटा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एंड ही वाज अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड। मैम ने कल भी आपको बताया था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। पद्म भूषण कौन सा होता है बेटा, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ठीक है, उससे उनको अवार्डेड, मतलब उनको ऑनर किया गया कब, 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड किया। ठीक है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय। यस जपनीत कौर, यस बेटा। हरिया बेटा, टाइम इज वेरी लेस। Raja Ram Mohan Roy was the greatest social reformer and the scholar. बेटा रिफॉर्मर क्या होते हैं, सुधारक। सोशल क्या होते हैं, हमारी सोसाइटी, समाज को सुधारने वाले, सोशल रिफॉर्मर। इसलिए उनको कहा जाता है बिकॉज उस टाइम हमारी सोसाइटी में इतनी बुराइयां थी कि उनको अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि मुझे इस सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, सुधार लेकर आने हैं। ओके, यस। स्कॉलर क्या होती है, बहुत पढ़े लिखे है ना। ही वॉज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यस, वो प्राचीन भारत को बदलना चाहते थे। वो कहते थे हमारे थॉट्स को बदलो।
ठीक है, अगर हमारे थॉट्स चेंज होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हम एक ग्रोइंग उसकी तरह बढ़ेंगे, है ना। हमारा देश एक अच्छे विचारों वाला बनेगा, लोग क्या होंगे, मॉडर्न होंगे। वो चाहते थे, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने उस टाइम के लोगों की बहुत सी धारणा को चेंज किया। यस, he was He born was on born. He was born on May 22, 1774 into a Bengali Hindu family. यस, बंगाली हिंदू फैमिली में उन्होंने मई 2274 में बर्थ लिया। यस बेटा, to improve the status of Indian women, he defied the age-old Hindu tradition and fought against sati system. Sati system, polygamy, caste discrimination and child marriage. Beta, listen this paragraph properly. Okay, listen it carefully. बेटा उस टाइम ये सारी बुराइयां हमारी सोसाइटी में थी। सती सिस्टम क्या होता है, जब किसी भी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब उस लड़की को उसके हस्बैंड की पायर जो चिता होती है ना, उसके अंदर ही, मतलब जिंदा को, अभी वो लाइव होती है, ये देखो, उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था, चाहे वो विलिंग होती थी या नहीं होती थी, चाहे उसकी इच्छा होती थी या नहीं होती थी, बट उसको अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही जिंदा जला दिया जाता था। उसको कहते हैं सती प्रथा। पॉलीगैमी कहती है बेटा बहुविवाह, इसमें बाल विवाह हो जाता था, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा, मीन तुम छोटी जात को बिलोंग करते हो, तुम मंदिर नहीं आ सकते, तुम राजा के घर नहीं जा सकते, तुम्हारा ये काम है, मतलब कास्ट के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बहुत से लोगों को। चाइल्ड मैरिज, बच्चा बहुत छोटा होता था, जैसे नर्सरी का बच्चा, इतने छोटे बच्चों की मैरिज की जाती थी। बच्चे को क्या समझ आता है, आपकी एज के बच्चे को क्या कोई नॉलेज है, आपसे भी छोटी एज के बच्चों की मैरिज की जाती थी। तब जो हमारे ये राजा राम मोहन रॉय हैं, उनको ये सारी चीजें बहुत, मतलब क्या होती है बेटा, ललकारते थे वो सोसाइटी के अंदर, जबकि उस टाइम सोसाइटी इस बात के लिए उनको पसंद नहीं करती थी कि जो हमारी चीजें बनी हुई हैं, हमारे जो फोर फादर से, ये तो उन्होंने बनाई है, अब ये इनको हम चेंज नहीं करेंगे। बट राजा राम मोहन रॉय ने इतने एफर्ट्स किए कि उन्होंने ये सारी बुराइयों को जितनी भी थी उनको दूर किया। ओके, उसके लिए बहुत से एफर्ट किए। यस, he was greatly influenced by influenced her sister. influenced होता है प्रभावित होना, किसी चीज से प्रभावित होना। by his sister-in-law death, who became सती बेटा, उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा जब सती हुई थी, उसके बाद उनका मन बहुत ही परेशान हुआ, बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने सोचा कि मुझे इन रिचुअल्स को, ये प्रथाओं को, ये जो बने हुए हैं बुराइयां, इनको सोसाइटी से खत्म करना है। ओके, it was due to his efforts that the British government made a law against the practice of sati. यस, उनके ग्रेट एफर्ट्स, उस टाइम ब्रिटिशर्स होते थे ना हमारी कंट्री में, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को अप्रोच किया, ठीक है, कि ये एक बहुत ही बुराई है हमारे इंडिया में कि हम लड़कियों को सती कर देते हैं, उनको सती होना पड़ता है, चाहे वो विलिंग हो या अनविलिंग हो। तो ब्रिटिश राज में उन्होंने इस सती प्रथा को बंद करवाया। यस, he was the founder of ब्रह्मो समाज। बेटा फिर उन्होंने एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको नेम दिया गया ब्रह्मो समाज। वो सभी लोग मिलकर, अब राजा राम मोहन अकेले नहीं थे, ब्रह्मो समाज भी उनके साथ था इन सब बुराइयों के
मतलब इन बुराइयों को खत्म करने में, at Kolkata in 1822. Yes. and And propagated होता है प्रसारित करना किसी चीज को. Yes. The oneness of God through Brahmo Samaj. Yes. He was against idol worship. आइडल वर्शिप क्या होती है बेटा? मूर्ति पूजा. वो कहते थे कि जो गॉड है, गॉड इज